زیادہ نقصان ہے وہ پنجاب میں. میں ابھی لاہور سے قصور سے ہو کر آیا ہوں. آج میں آپ کے پاس یہاں جنوبی پنجاب میں وسیب میں خود دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ کس طریقے سے اس سیلاب نے تباہی کیا ہے، کس مشکلات میں یہاں کے عوام اس وقت جس مشکل سے گزر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہوگا اس سیلاب سے، وہ ہمارا پنجاب کا کسان ہے، ہمارا ذرائع معیشت ہے. اور اس مشکل وقت میں ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ دیں. ہر سیلاب کا، ہر قدرتی آفت کا 3 مرحلہ ہوتے ہیں. جو امیڈیٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ریسکیو، کہ ہم عوام کے جان بچائیں. دوسرا فیکٹر ہے آپ کا ریلیف، کہ جو ریشن کا، جو ٹینٹ کا، جو فوری طور پہ جیسے یہ سیلاب کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کیا کیا اپنے طرف سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے. اور آگے جا کے جو آنے والے مرحلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ریلیف کا فیز ہے اس میں لوگ دھیان دیتے ہیں، مگر اس سے اتنا ہی اہم ہے کہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں پھر سے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ہو. تو ان تمام ایسپیکٹس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے. یہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹرانسپیرنسی کا میکنزم بھی ہے، اور ہر قدرتی آفت میں، چاہے وہ پچھلے سیلاب ہو، چاہے وہ کورونا ہو، تو یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے مالی مدد پہنچایا ہے. تو میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہم نے اس سیلاب کے نتیجے میں، جبکہ گلگت بلتستان ہو، پختونخوا ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، اور آگے یہ پانی نے سندھ کی طرف بھی بھرنا ہے، اتنے سارے علاقے متاثر ہیں. تو بات بھی کیا ہے اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس پہ ایکشن بھی لے گا اور انشور کرے گا کہ جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ ہے، سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ایسا احساسہ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے. اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس کے ذریعے یہ ریلیف کے جو مرحلہ ہے اس میں عوام کو مدد کرنے کے لیے یہ بس کو استعمال کیا جائے گا. ساتھ ساتھ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہمارا ریکویسٹ یہ ہے صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمیں اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے ہمارا کسان ہے، اس شعبے کو جس انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، جو بھی سپورٹ دیا جا سکتا ہے، وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں اور متاثر عوام کو فائدہ دے گا، مگر اوور آل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے زرعی شعبے سے تعلق جو ہونے والا ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ
पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना, इस किस्म का पॉलिसी तब हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जो बिजली की जो इनके बिल है, इस पूरा वक्त जब से ये सैलाब शुरू हुआ उस दिन तक, जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अपना सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी पे रिव्यू करना चाहिए और आगे जाके क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं अपने किसानों के लिए, उनको मेकअप करने के लिए कि ये इतना बड़ा हादसा, एक कुदरती आफत जो हुआ है। इसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले दौर में जो PDM का हुकूमत था और मैं इनके साथ वज़ीर ख़ारजा था, तो जो हमने मिल के सैलाब मुतासिर इलाकों में जो जिन घरों का नुकसान हुआ, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सूबा सिंध में हो, उन घर को फिर तामीर करने का एक मंसूबा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है हमें मदद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से, कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, दो अपील्स होते हैं। एक आपका अपील इमरजेंसी रिलीफ का होता है जो उस वक्त का जब आपके यहाँ वो कुदरती आफत गुजर रहा है, और दूसरा जो अपील वो तो बाद में होगा जो आपका रिकन्स्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का अपील है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का से ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का। हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतज़ामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। इस सैलाब का जितने लोग मुतासिर हुए हैं, जो इलाके मुतासिर हुए हैं, ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को भूल के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए, मगर साथ साथ ज़रूरी है कि हम आलमी सतह पे भी अपना जिम्मेदारी पूरा करें। मैं जानता हूँ कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के अवाम के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मदद करे। अगर इतना स्केल का एक कुदरती आफत, एक सैलाब हुआ है, लेकिन अगर हम अपील करेंगे ही नहीं और वो प्रोसेस शुरू करेंगे नहीं तो फिर वो मज़ीद डिले होता जाएगा। मैं एक बार फिर महर इरशाद सियाल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने ये सैलाब के दौरान हमें, हमारे बाकी दोस्तों को होस्ट भी किया। मैं जानता हूँ कि एक जो हमारा प्रोग्राम था यहाँ का, ये बारिश की वजह से मुतासिर हुआ है। उम्मीद है कि एक बेहतर वक्त में आगे जाके मैं वापस आऊँगा। जो आपका अपील है अपना सड़क का जो आपने रिक्वेस्ट किया है रोड के लिए, डिपेंडिंग ऑन उसका जो कि उसका कॉस्ट एस्टिमेट होगा, हम या वज़ीर आज़म साहब से या जिससे हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला हम आपके इलाके के अवाम के लिए वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे। आखिर में मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ये वो मौका नहीं है कि हम एक दूसरे के जो सियासी बयानबाजी है या इख्तिलाफ की गुंजाइश तो वैसे तो बहुत होता है, ये वो वक्त नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे पंजाब का मीडिया को अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि किस अंदाज से अब एक दो हफ्ते से ये सैलाब आया है और इतने बड़ा इलाके, इतने सारा तादाद में अवाम मुतासिर हुए हैं, मगर आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसका कुदरती आफत में मैं समझता हूँ कि यही तरीका है। और जब ऐसे हादसात और ऐसे वाक़ये सिंध में होते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मीडिया भी आपसे
ऐसा कुछ सीख लें। तो आखिर में अच्छा अभी चेयरमैन साहब एक मिनट भाई, ऐसे अनऑर्गेनाइज नहीं होता। गाजी साहब एक करके जो है मेरा मीडिया की कमी है, लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं है, कैप्स की कमी है, उसके हवाले से मैं इतना बड़ा स्केल पे जब भी एक ऐसे वाक़या होता है तो हमेशा हमारा कोशिश ये है, चाहे वो वफाकी सतह पे हो, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के सतह पे हो, कि हम सब मिल के रिसोर्सेस पूल के इन मसाइल का मुकाबला करें। यहाँ ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर मगर प्राइवेट सेक्टर भी मिल के मदद कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो कि जितना भी कोशिश हो रहा है हर मौके पे there's always people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. सब अपनी कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, कहीं पूरा ज़रूरियात हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। हमारा कोशिश होगा कि जहाँ कमी है हम अपनी कोशिश से वो पूरा करें। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो फौरी तौर पे वहाँ से रिलीफ देना शुरू हो जाए। इसलिए एक हद तक हुकूमत की तरफ से जो राशन दिए जा रहे हैं या जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो कवर कर रहे हैं। फिर मैं जानता हूँ हर कोई अपने अपने इलाके में अपनी जितना हो सकते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है जहाँ लोग के डाटा मौजूद है, जहाँ फौरी तौर पे पहुँच सकते हैं, वो मैकेनिज़्म जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, मैंने रिक्वेस्ट किया है PM साहब से कि उसके थ्रू वो फौरी तौर पे मदद करेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी ये फर्स्ट सैलाब की कवरेज और मैंने अंदर जाके लोगों को देखा है जो इस वक्त चारों तरफ से घिरे में है और उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब मसला ये है कि इमदाद हो रही है, ठीक है, हुकूमत आपको कैंप्स भी दे रही है, आपको 3 वक्त का खाना भी दे रही है। अब उनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि या तो तीनों टाइम में चावल दिए जा रहे हैं, रोटी नहीं दी जा रही, एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुँच रही। तो काइंडली ऐसा मैकेनिज्म दिया जाए उसमें हमारे जितने भी लोग हैं, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ऐसा भी मैकेनिज्म लेकर आया जाए कि मुस्तहिकीन तक जिनको ज़रूरत है इसकी उन तक जो है वो इमदाद पहुँच जाए। एक तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सब जो इमदाद दे रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं मदद करने का। बेस्ट टारगेटिंग जो मैकेनिज्म है ना इस मुल्क में, एक तो ना सिर्फ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मगर किसी भी कुदरती आफत में वो डिजर्विंग लोगों को पहुँचने के लिए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो यही वजह है कि हमने PM साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट को ना UN से अपील करनी चाहिए। बिलावल साहब, हमारा 200 किलोमीटर का एरिया है, जवाना बंगला से शुरू होता है और हेड पंजनर तक। इसमें 139 मौजाजात हैं जो मुतासिर हुए इस वक्त तक। हम आपको ये बता दें कि इंतजामिया की जानिब से 22 फ्लड रिलीफ कैंप है। क्या ये काफ़ी है 139 मौजाजात जो मुतासिर हो रहा है उसके लिए? जितना 3 दरिया में जो सैलाब 1-2 हफ्ते अब हो चुके हैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, और पीछे अब हर दूसरा दिन बाद आप सुनने में आ रहा है कि भारत मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है। तो मैं जानता हूँ कि इस जितना बंदोबस्त हुकूमत की तरफ किया जा रहा है वो अवाम में मज़ीद वो ख्वाहिश है, मुतालबा भी है कि चाहे वो रिलीफ हो, चाहे वो राशंस हो या जो आपके सिवा कि मज़ीद मदद किया जाए। और मेरा ख्याल में इसी पे काम किया जा रहा है। जितना ज़्यादा इलाके मुतासिर होते हैं उतने मज़ीद रिलीफ के लिए कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाके में लोग तो अपने रिश्तेदारों के पास और जाने वाले के पास भी अपने बंदोबस्त अपने कोशिशों से कर रहे हैं। मगर फिर से मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हुकूमत के पास सबसे बड़ा इफेक्टिव हथियार रिलीफ और मदद पहुँचाने के लिए इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और उनको वो मैकेनिज़्म को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुल्तान में आपकी टीम आदि कासिम गिलानी आपके पीछे खड़े हैं, बहुत मुताबिक है, इन्हीं को देखकर
मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी साथ साथ जो है वो मुतारिफ हो चुके हैं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब तक आपने जो विजिट्स किए हैं क्या कमी जो है वो देखने में आ रही है यहाँ पर कैंप्स के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब से आप मुल्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर भी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे रोरी टीवी का मुझे जवाब देने दे, वरना पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। एक तो आपका शुक्रिया, बिल्कुल मैंने तो पहले भी, मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे, चाहे वो वफाकी सतह पे हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो, और हाँ ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से हो, हर कोई अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करें, लोगों को बचाएं, अवाम को बचाएं, मदद पहुँचाएं। मैं आज आगे जाके मुल्तान भी जाऊंगा, दौरा भी चलता रहेगा, जहाँ भी अगर मुझे कहीं नज़र आता है कि बेहतरी की गुंजाइश है या कोई कमी पेशी है तो मैं बात कर सकता हूँ सूबाई हुकूमत से, या जो भी इदारा वफाकी हो जिसका वो काम हो। मेरा नहीं ख्याल में ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे मुझे इस वक्त जब कुदरती आफत मौजूद हो कि उस पर गौर किया जाए। बाद में जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आने वाले सैलाबों के लिए हम अपना कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे हम मुजफ्फरगढ़ में आए, हमारे मुजफ्फरगढ़ एक सर बहुत बड़ी इस्लाह मुतासरीन की तादाद है कि जो लोग पहले कहीं और रह रहे थे, लेकिन काफ़ी 5-10 साल से वो एक ऐसे मौजे में एक शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ पे आज सैलाब है। हुकूमत की जानिब से जो भी इमदाद वगैरह या जो भी टेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं उस पर शरारती गार्ड वगैरह उनका चेक किया जाता है, लेकिन उनका शरारती गार्ड किसी और मौजे का निकलता है, लेकिन वो असल में जो है सैलाब का दुकान है। ऐसे लोगों के लिए भी कोई टीम तश्कील दी जाए ताकि इनका तायन किया जा सके। बाद में ऐसी चीज़ें हो सकती है, इस वक्त जो भी मदद मांग रहे हैं उनको हमें मदद देना है, ये नहीं देखना है कि कौन सा किस यूसी से कौन से वो। इस वक्त जो है सबका कोशिश यही है कि हम मदद पहुँचाएँ, कोशिश करें कि जितने मुतासिर लोग हैं उनको मदद दिया जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हैं हमारे, उनमें कैसे बेहतरी आ सकता है, उसमें बाद में ये कुदरती आफत गुजरने के बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा कि हम वो बेहतरी का गुंजाइश तलाश करें। बिलावल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको खराज तहसीस पेश करते हैं कि इस कदर शदीद बारिश में आपने लोगों के साथ मोहब्बत के इज़हार के लिए तशरीफ लाए हैं। आपके सिपाही जो हमारी शाद सयाल बैठे हुए हैं, इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में अगर कोई बंदा फील्ड में नजर आ रहा है और उन मुतासिरीन के पास जा रहा है तो ये आपका सिपाही है। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सर, मैं मुजफ्फरगढ़ का एक साफी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का, मैं MA जर्नलिज्म हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं पाकिस्तान का बेहतरीन डिबेटर हूँ। सर, मैंने यहाँ जिला कौंसिल की लैंड लीज पर लेकर मैंने यहाँ पार्क बनाया। सर, यहाँ पर 10 साल की लीज थी, 1 साल बाद जिला कौंसिल ने उसको सील कर दिया। अब वो सील करके वहाँ पे प्राइवेट लोग बिठा दिए, मेरा सामान करोड़ों रुपए मालियत का जानबूझ के डुबो दिया। मुझे 1 रुपए की गवर्नमेंट से कंपनसेशन नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती तो आपके गवर्नर सामने बैठे हुए हैं, मेरा आईन पाकिस्तान मुझे इजाजत देता है कि मुझे मेरी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करवा लें। अगर उस इंक्वायरी में मैं कहीं गलत साबित होता हूँ तो सर मैं एक पाई की भी कंपनसेशन लेने के लिए उसमें नहीं हूँ। अगर मेरे साथ ज्यादती की गई है करप्ट जिला का कौंसिल के लोगों ने तो सर मेरी एक गवर्नर साहब को ऑर्डर कर दें कि मेरी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा लें। बस मैं यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, सियाल साहब ने पहले से आपका ये मामला उठा भी लिया था और अपने मुतालबात में ये शामिल है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा गाजी भाई अंसार को सुनने दे यार। आप पिछले 2010 के फ्लड में भी थे, 14 में भी आया और आप बेशतर लोगों को, हमारे सहाफियों को जानते हैं, चेहरे आपने पहचाने हुए। बात यह है कि हम अगर इंतजामिया के खिलाफ कोई अगर रिपोर्टिंग करते हैं सिर्फ उनको बताने के लिए कि ये तनकीद बराए इस्लाह है, हमारे एक रिपोर्टर को ऑफ एयर कर दिया जाता है, जबकि आपकी हुकूमत ने हमेशा हमारे साथ मुजम्मती तौर पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हमने कोई मुजम्मत नहीं की। आपकी और गवर्नर साहब की आमद पे सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आप मुजम्मती अल्फाज जरूर अख्तियार करें।
उसकी वजह ये है कि हमारा सीनियर रिपोर्टर है जिसने सच दिखाया और वो आपने दो रोटी दी जाती है, सिर्फ सुन ले, 2 रोटी दी जाती है, सालन दिया जाता है, केला दिया जाता है, सेब दिया जाता है, और इसका सवाल का मैं जवाब देना दूं ना, ताकि मैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ तक आपने आज़ाद सहाफ़त की बात की है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ाद सहाफ़त की हमायत भी करते हैं। मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम, आप ज़रूर पहुँचाएँ हमें, ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। इस वक्त जो सब सूरत हाल हमारे सामने है, हम इस वक्त ज़ियाफ़त पे और सैलाब पे जोर देना चाहेंगे, मगर ज़रूर जहाँ तक आज़ाद सहाफ़त है हम पहले भी आए थे, आपने कहा था सर आप हमें सुबह ही दे दें सर, चलो इससे हट के खुशखबरी दे दें सर, आप इंशाल्लाह फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं सर, जो आपको देख रही है सर, वो पहले पीडीएम ही सर, पीडीएम के साथ रहे, फिर आप सर इस तरह का हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या है सर, हम आज इस वक्त हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और आवाम के सैलाब के हवाले से दौरे पे निकले हैं, और हमने सिर्फ इसी इशू पे जोर देना है। मैं किसी कैंपेन के इशू पे या मेरे अपना मंशूर का जो इशूज है वो आपके सामने वैसे सारा पानी सिंध जा रहा है, सब हुकूमत तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना तैयारी हम जारी है और हम मुकाबला करेंगे। हमारा कोशिश है कि हम हर लिहाज से इस सैलाब का मुकाबला करें। मेरा आपके हवाले से मीडिया के थ्रू अपील करना चाहूँगा सिंध के अवाम को, ख़ास तौर पे वो जो कच्चे में आबाद है, कि वो ज़रूर इवैक्यूएट करें और लोकल इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से ताउन करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जैसे माजी में मुकाबले किया है हम फिर से मुकाबला करेंगे।